بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے سانحہ ساہیوال کی بات کرتے ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ فضیل اصغر کی سانحہ ساہیوال پر بریفنگ مسترد کر دی ہے۔ کمیٹی نے پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تجویز بھی دے دی ہے۔ فضیل اصغر نے بریفنگ میں JIT کی رپورٹ کا بھانڈا اس کے آنے سے پہلے ہی پھوڑ دیا۔ کہا ذیشان کو دہشت گرد، باقی کو بے گناہ قرار دیا جائے گا۔ سانحہ ساہیوال پر JIT کی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی، مگر کیا رپورٹ آئے گی؟ ایڈیشنل سیکریٹری داخلہ پنجاب فضیل اصغر سب جانتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح سانحہ ساہیوال میں شہید ہونے والے خلیل کے بھائی جلیل جانتے ہیں کہ JIT کیا رپورٹ دے گی۔ پولیس والوں نے کیا ہے اور پولیس والے ہی کیسے وہ ہمیں انصاف دلائیں گے، اور GIT وغیرہ بنا دی ہے تو ہمیں ان پہ بھروسہ نہیں ہے کہ ہمیں انصاف دلایا جائے۔ فضیل اصغر نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں برملا کہا کہ JIT رپورٹ میں ذیشان کو دہشت گرد اور باقیوں کو بے گناہ قرار دیا جائے گا۔ سیکریٹری داخلہ کا کہنا تھا کہ آپریشن کے طریقہ کار کو غلط قرار دے کر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی تجویز کی جائے گی۔ انہوں نے مقتول خلیل کے بیٹے عمیر کا بیان بھی صدمے کا نتیجہ قرار دیا، جس پر بیرسٹر سیف نے کہا کہ پولیس کو JIT بنانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ خلیل کے بھائی جلیل بھی تو یہی کہتے ہیں کہ JIT کی رپورٹ پہلے سے ہی طے شدہ ہے، اس لیے تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بنایا جائے، اور قائمہ کمیٹی انسانی حقوق کے ارکان JIT پر عدم اعتماد کر رہے ہیں، اور چیئرمین قائمہ کمیٹی مصطفیٰ نواز کھوکھر یہ کہتے ہیں تو کیا غلط ہے؟ جو بریفنگ ہمیں دی گئی ہے وہ بریفنگ سے ہم بہت غیر مطمئن ہیں۔ کمیٹی کے سوالات کا جواب وہ نہیں دے سکے، ہمیں بہت سے لوپ ہولز نظر آئے، اور پھر اس چیز پر حیرت ہوئی کہ جن پر اعتراض ہے پولیس پر، انٹیلیجنس اداروں پر، انہی پر مشتمل JIT بنا دی گئی ہے اس واقعے کو انویسٹیگیٹ کرنے کی۔ کیا بہتر نہ ہوگا پہلے سے طے شدہ JIT رپورٹ پیش کر کے پنڈورا باکس کھولنے کی بجائے عدالتی کمیشن بنا دیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے؟ ادھر سانحہ ساہیوال کے مدعی مقدمہ جلیل نے شناخت پریڈ سے انکار کر دیا۔ کہا کس کی شناخت پریڈ کریں، پولیس کو قاتلوں کا پتہ ہے، JIT مقدمے کو خراب کر رہی ہے، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ انصاف کا حصول یا عمیر، منیبہ اور ہادیہ کے زخموں پر نمک پاشی؟ CTD کے پاس تمام ریکارڈ موجود ہونے کے باوجود ورثاء کو شناخت پریڈ کے نوٹس نے تفتیش پر سوالات اٹھا دیے۔ سانحہ ساہیوال کے لیے قائم JIT نے گزشتہ روز جلیل، بھتیجے عمیر اور مقدمے کے گواہان کو ساہیوال شناخت پریڈ کے لیے بلایا تھا، لیکن مقدمے کے مدعی جلیل نے CTD کے گرفتار اہلکاروں کی شناخت پریڈ کرنے سے انکار کر دیا۔ جلیل کا کہنا تھا کہ وہ JIT کو نہیں مانتے کیونکہ یہ مقدمے کو خراب کر رہی ہے۔ کس کی شناخت پریڈ کریں، JIT اور پولیس کو پتا ہے قاتل کون ہے۔ جلیل کا کہنا تھا کہ جب تک تمام ملزمان نہیں گرفتار ہوں گے شناخت پریڈ کیسے ہوگی؟ JIT مقدمے کے شواہد ضائع کر کے عینی شاہدین کو تنگ کر رہی ہے کہ ساہیوال کی بجائے لاہور منتقل کیا جائے۔ جلیل نے تفتیش کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ JIT کی بجائے جوڈیشل کمیشن میں پیش ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے سول اسپتال کوئٹہ کے مغوی نیورو سرجن ڈاکٹر ابراہیم خلیل 48 روز بعد گھر پہنچ گئے۔ اغوا کاروں نے انہیں چمن کے مال روڈ پر چھوڑا۔ ڈاکٹر ابراہیم نے میڈیا سے فی الحال بات کرنے سے انکار کر دیا۔ ساتھ ہی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ رہائی کے لیے 5 کروڑ روپے تاوان دیا گیا۔ ڈاکٹر ابراہیم کیسے رہا ہو گئے؟ 2 کروڑ دے کر یا حکومتی کوششوں سے؟ اس پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، یہاں تک کہ خود ڈاکٹر ابراہیم بھی جو 48 روز تک اغوا کاروں کے قید میں رہے، ان کے مطابق ادویات کی وجہ سے ذہن کام نہیں کر رہا، ابھی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ ابھی کم از کم مجھے بعد میں وقت ہے، میں کیونکہ مینٹلی اتنا ڈسٹرب ہوں، میں کچھ بول نہیں پاؤں گا، بہتر ہے کہ ہم اس پہ دوبارہ بات کر سکیں۔ دوسری جانب ڈاکٹرز ایکشن کمیٹی نے خدشہ ظاہر کیا کہ ڈاکٹر ابراہیم تاوان ادائیگی کے بعد گھر پہنچے۔ ڈاکٹر صاحب سے آپ کے سامنے میں نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی، پہلے ان کو ریسٹ کی ضرورت ہے، پھر ہم تفصیل سے آرام سے جب وہ چاہیں گے تب بات کریں گے۔ بالکل بھی ہم نہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں ابھی، نہ کرنا چاہتے ہیں، جب وقت آئے گا اس کا دور ہو جائے گا پھر کریں گے۔ کسی نے ریکارڈ نہیں کیا ہے، انہوں نے صاف کہا کہ میں پیمنٹ کر کے آیا ہوں، رینسم ادا کر کے آیا ہوں اور اچھی خاصی بڑی اماؤنٹ ادا کر کے آئے۔ نیورو سرجن ڈاکٹر ابراہیم خلیل کو 13 دسمبر کو اغوا کیا گیا، ان کی بازیابی کے لیے ڈاکٹرز کی تنظیموں نے ہڑتال کر دی تھی۔
बात करेंगे कहाँ मामले की। सानिहा 12 मई किस तरह हुआ, अहकामात क्या मिले और किसने दिए। कराची में गिरफ्तार मुत्तहिदा के कारकुन इसहाक और फलस्तीनी ने पर्दा उठा दिया। जिले हैदर की रिपोर्ट में जानिए। सानिया 12 मई का वाकया किस तरह हुआ, अहकामात क्या मिले और किसने दिए। एमक्यूएम लंदन के कारकुन मोहम्मद इसाक उर्फ फलस्तीनी ने हकाइक से पर्दा उठा दिया। सीटीडी के हाथों गिरफ्तार एमक्यूएम की तंजीमी कमेटी के साबिक इंचार्ज मोहम्मद इसाक उर्फ फलस्तीनी की इंटेरोगेशन रिपोर्ट 24 न्यूज ने हासिल कर ली। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि 12 मई 2007 को एमक्यूएम के कायद ने हुक्म दिया कि कुछ भी करो, चीफ जस्टिस को एयरपोर्ट से बाहर न आने दो। कुछ ऐसा करो कि कोई भी सियासी तंजीम चीफ जस्टिस को लेने एयरपोर्ट न पहुँच सके। रिपोर्ट में कहा गया कि एमक्यूएम के कायद के हुक्म पर सेक्टर और यूनिट को अहकामात दिए कि फायरिंग ही क्यों न करना पड़े, सियासी तंजीमों की रैलियों को रोको। मुलजिम सुबह एयरपोर्ट पर रहकर कारकुनान की कमांड करता रहा। मुलजिम ने इंकशाफ किया कि इसने मुत्तहिदा कायद के हुक्म पर 1988 में पार्टी के ही कारकुन आफ्ताब को कत्ल भी किया। इसके अलावा फायरिंग करके कई लोगों को जख्मी करने में भी मुलव्विस रहा। आम खबर आपको दें मुजफ्फराबाद से, जहां जामिया आजाद जम्मू कश्मीर में पुलिस और तलबा के तसादुम में इलाका मैदान जंग बन गया। तलबा पार्किंग और दीगर मसाइल के हल के लिए एहतजाज कर रहे थे कि पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। एहतजाज की वजह से यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द की तमाम सड़कें मुकम्मल बंद हो गई। तलबा ने लाठी चार्ज करने वाले पुलिस एहलकारों पर पथराव भी किया। पुलिस ने रबड़ की गोलियां भी चला दी, जिससे 2 अफराद जख्मी भी हुए। मुजफ्फराबाद की जामिया आजाद जम्मू कश्मीर में पुलिस और तलबा के तसादुम में इलाका मैदान जंग बन गया। तलबा पार्किंग और दीगर मसाइल के हल के लिए एहतजाज कर रहे थे कि पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। के बाद खुशामदीद कहेंगे। नए पाकिस्तान की हुकूमत हज पर सब्सिडी न देने पर डट गई। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने हज पर इज्तिमाई सब्सिडी को जायज करार दे दिया। मॉडल रियासत मदीना के नुमाया खदोखाल के हवाले से वर्किंग ग्रुप भी बन गया है। नए पाकिस्तान की हुकूमत हज पर सब्सिडी न देने पर डट गई है। हुकूमत इनफरादी नहीं बल्कि इज्तिमाई सब्सिडी दे सकती है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने हज पर हुकूमती सब्सिडी जायज करार दे दी। ये तय पाया कि दुनिया के अंदर ऐसी हुकूमतें हैं जिनमें गैर मुस्लिम हुकूमतें भी शामिल हैं कि वो हज के लिए सहूलियात फराहम करती हैं। तो पाकिस्तान की हुकूमत तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो अगर वो हज के लिए सहूलियात फराहम करे तो ये अच्छी बात है। इस्लामाबाद में इस्लामी नजरियाती कौंसिल के 2 रोजा इजलास के इख्तिताम पर मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन किबला अयाज का कहना था कि तसव्वुर रियासत मदीना का मुसविदा आईन और कानून से रहनुमाई लेकर मुरतब करेंगे। इजलास में रियासत मदीना के हतमी खदुखाल के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। उस कमेटी ने काम किया, इब्तिदाई सिफारिशात पेश की, जो आज हमने इस्लामी नजरियाती कौंसिल के इजलास के सामने पेश की, और इजलास ने उसको बहुत संजीदगी से उनका मुताला किया और एक वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया। वर्किंग ग्रुप जो है वो इन सिफारिशात का जायज़ा लेगा, इनको बेहतर बनाएगा, इस पर मज़ीद काम करेगा। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर किबला अयाज ने सानिया साहिवाल को इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक करार देते हुए कहा कि इंसानी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी रियासत पर आयद होती है। कौंसिल ने लौरा लई में शहादतों पर भी अफसोस का इज़हार किया। कैमरामैन आशिर भट्टी के साथ गौहर महसूद, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब में दीगर अजला के लिए माली बहरान है, लेकिन वज़ीर आला के जिले के लिए खजाना मेहरबान है। सरदार उस्मान बुज़दार के जिले में तरक्याती मंसूबों के लिए 1 अरब रुपए की इजाफी ग्रांट जारी कर दी गई। दूसरे मंसूबे मुकम्मल हो या ना हो, वजीर आला के जिले की सड़क जल्द मुकम्मल होनी चाहिए। वजीर आला उस्मान बुज़दार के जिले के लिए 1 अरब रुपए के इजाफी फंड जारी कर दिए गए। डीजी खान से मुजफ्फरगढ़ सड़क की तामीर साबिक दौरे हुकूमत से जारी है, लेकिन रवा माली साल में कम बजट मुख्तस होने पर सड़क की तामीर सुस्त रवि का शिकार थी। लेकिन जब वजीर आला ही किसी जिले के हों तो फिर किस बात की देरी। ऐवान वजीर आला से PND को इजाफी फंड्स का हुक्म जारी किया गया और PND ने आओ देखा ना ताओ फटाफट 1 अरब रुपए के इजाफी फंड्स जारी कर दिए। जराये के मुताबिक जारी किए गए फंड्स मुख्तलिफ स्कीमों से कट लगाकर साईं बुज़दार के जिले को मुंतकिल किए गए। हुक्काम का कहना है कि ऐवान वजीर आला की सिफारिशात पर महकमा PND बोर्ड ने हंगामी बुनियादों पर फंड्स मुंतकिल किए।
साई मुजदार के शाहाना अंदाज भी थमे नहीं, बल्कि सरकार ने MPAs को भी नवाजने का फैसला कर दिया। हर हुकूमती MPA को तरक्याती स्कीमों की मद में 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने चीफ सेक्रेटरी को तरक्याती फंड्स के हवाले से समरी भेजने की भी हिदायत कर दी। गुज़श्ता 24 घंटों में क्या हुआ ये आपने देख लिया। आइंदा 24 घंटे की पेशगोई भी सुन ले। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कल भी बारिश और पहाड़ी मकामात पर बर्फबारी होगी। मालाकन, हजारा डिवीजन, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। जुमे से पीर तक मौसम खुश्क रहेगा। मौसम के हर रोज बदलते रंग हैं और सर्दी की इनिंग्स भी जारी है। शहरी हो जाएं तैयार, क्योंकि कल से फिर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा। मालाकंड, हजारा, पेशावर, मर्दान, रावलपिंडी और गुजरांवाला समेत लाहौर, सरगोधा, फैसलाबाद डिवीजन, इस्लामाबाद, गिलगित और कश्मीर में अक्सर मकामात पर बारिश होगी, जबकि हजारा डिवीजन, गिलगित और कश्मीर में बारिश के साथ साथ बर्फबारी का भी इम्कान है और लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है। अब जुमे को कैसा रहेगा मौसम, इसकी बात कर लेते हैं। तो जुमे को मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम ठंडा और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात ने कश्मीर, गिलगित, रावलपिंडी डिवीजन और मालाकंड, हजारा में भी बारिश की पेशगोई कर दी है। हफ्ते की बात करें तो हफ्ते के रोज भी मौसम खुश्क रहने, जबकि पहाड़ी मकामात पर हल्की बारिश के साथ बर्फबारी का इम्कान है। इतवार के रोज गिलगित बल्तिस्तान और मालाकंड डिवीजन के चंद मकामात पर बूंदाबांदी के साथ साथ बर्फबारी भी होगी। इसके अलावा अगर हम पीर की बात करें तो पीर को एक मरतबा फिर से मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि कोयटा, जोब, मालाकंड, हजारा, कोहा डिवीजन और गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। के बाद खुशामदीद। एबटाबाद कॉम्प्लेक्स अस्पताल के डॉक्टर्स की बड़ी गफलत सामने आ गई। खातून की टांग से रॉड निकालने की बजाय पेट का ऑपरेशन कर डाला। खातून ऑपरेशन थिएटर में नीम बेहोशी की हालत में चिल्लाती रही। डॉक्टर्स तो मसीहा होते हैं, जख्मों पर मरहम पट्टी लगाते हैं, दवा दारू देते हैं, मगर एबटाबाद के अयूब मेडिकल अस्पताल के डॉक्टर्स ने तो हद ही कर दी। खातून मरीजा के साथ किया अनोखा खिलवाड़, सुनने वाले भी हैरान रह गए। ये है खातून मरीजा गुल आमना बीबी, जिसकी टांग में रॉड डाला गया। डॉक्टर्स ने रॉड निकालने के बजाय पेट का ऑपरेशन कर डाला। क्या ऐसे होते हैं डॉक्टर्स? मुतासिरा खातून का कहना है कि वो ऑपरेशन थिएटर में नीम बेहोशी की हालत में कहती रही कि टांग का ऑपरेशन है, मगर डॉक्टर्स ने बात ना सुनी। ऑपरेशन मेरे पेटे दा कुछ नहीं, मेरी टंगा दा मसला है, मेरी टंगा दा ऑपरेशन हो सी, मेरे पेट ना मसला जड़ा कोई ना। दूसरी तरफ अस्पताल इंतजामिया ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एक ही नाम की 2 मरीजा थीं, जिनमें से एक का पेट और दूसरी का टांग का ऑपरेशन करना था। गलती से मरीजा का गलत ऑपरेशन हो गया। दोनों पेशेंट्स के नाम मिलते जुलते थे, इस वजह से कंफ्यूजन पैदा हुई। सर्जिकल टीम ने प्रोसीजर शुरू किया तो वहाँ पे पता चला कि ये पेशेंट बेसिकली सर्जिकल पेशेंट नहीं है, ये ऑर्थोपेडिक्स वालों की पेशेंट है। लवाहिकीन का कहना है कि ऑपरेशन से कबल डॉक्टर्स ने मरीजा की फाइल चेक क्यों ना की। उन्होंने मुतालबा किया कि गफलत बरतने वाले डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और खुराक के नाम पर जहर बनाने वालों पर फूड अथॉरिटीज की गिरफ्त सख्त हो गई। फैसलाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी और कराची में सिंध फूड अथॉरिटी ने मिलावट माफिया और जायदुल मया चीजें बेचने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां की। पंजाब और सिंध में फूड अथॉरिटीज की कार्रवाइयां जारी। सूबाई वजीर खुराक और डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में फैसलाबाद में मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी ने ऑपरेशन किया। मुख्तलिफ इलाकों में किए जाने वाले ऑपरेशंस में टीमों ने गंदे अंडे बाकियात से निकाला तेल, जाली घी, मक्खन, डेयरी, केचप यूनिट्स और बेकरी प्रोडक्शन हाउसेज समेत 6 पॉइंट्स को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक नाकिस इस्तेमाल शुदा तेल अशिया खुर्रनोश बनाने वालों को फरोख्त किया जाता रहा। उधर सिंध में भी इंसानी जानों से खेलने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया। सिंध फूड अथॉरिटी की टीम ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में दूध की दुकानों पर छापे मारे। छापों के दौरान बच्चों को ममनुआ अशिया और बाद जायदुल मयाद खाने की चीजें बरामद कर ली गयी, जबकि गफलत बरतने पर 309 दुकानदारों पर हजारों रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया।
म्यूजिक सुनकर डांस किए बिना रुकना मुश्किल हो गया। जी हां, कराची में वेस्ट इंडीज वुमेन खिलाड़ी ने जब वेस्ट इंडियन गाना सुना तो खिलाड़ी डांस किए बिना ना रुक पाई। मैच प्रैक्टिस के दौरान खिलाड़ी ने डांस किया। वेस्ट इंडीज वुमेन टीम T20 सीरीज के लिए कराची में है। पहला मैच कल होगा। PF स्की रिजॉर्ट नलदर में मुनक्किदा तीसरे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ काराकोरम इंटरनेशनल अल्पाइन स्की कप के दूसरे दिन यूक्रेन के स्कीयर्स छाए रहे। मर्दों की स्लालम कैटेगरी में तुर्की के खिलाड़ी पहले और पाकिस्तान के मोहम्मद करीम दूसरे नंबर पर आए। तीसरी पोजीशन यूक्रेनी स्कीयर ने हासिल की। खवातीन की स्लालम कैटेगरी में भी यूक्रेनी खिलाड़ियों ने पहली और दूसरी पोजीशन हासिल की, जबकि पाकिस्तान की जियाली तीसरे नंबर पर रही। और इस बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन। हमारे साथ रहिए।